بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں تراویح۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 5ویں پارے کے آخری رکوع سے 7ویں پارے کے 5ویں رکوع تک تلاوت کی گئی ہے۔ چوتھی تراویح میں پڑھی جانے والی آیات میں ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ جب کوئی سلام کرے یعنی السلام علیکم کہے تو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے، ورنہ کم از کم اتنا لوٹا دینا چاہیے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر کوئی سلام کا جواب سلام سے نہ دے تو گویا اس نے اس کا سلام بھی قبول نہیں کیا۔ اس بات کی اگر اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھیں گی، انتشار ہوگا اور شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس تراویح میں اس گناہ سے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے چھٹے پارے لا یحب اللہ کو ان الفاظ سے شروع کیا گیا ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ برائی سے اس کا ذکر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ گویا بتایا کہ عفو و درگزر کی عادت ڈالو۔ جس اللہ سے تم قریب ہونا چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ وہ نہایت حلیم اور بردبار ہے، سخت سے سخت مجرموں کو بھی رزق دیتا ہے اور بڑے سے بڑے قصور بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے، لہٰذا اس سے قریب ہونے کے لیے تم بھی عالی حوصلہ اور وسیع النظر بنو۔ پھر بتایا کہ جس طرح کھلم کھلا انکار کفر ہے، اسی طرح اپنی شرارت پر ایمان لانا بھی کفر ہے، یعنی ہم ایمان لاتے ہیں فلاں رسول کو مانیں گے اور فلاں کو نہیں مانیں گے، اور اسلام اور کفر کے بیچ میں راستہ نکالنے کی کوشش، یہ سب بھی کفر ہی ہے۔ یہود کی تاریخ دہرائی کہ وہ کس طرح گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، مگر ہم نے پھر بھی ان کے ساتھ معافی کا سلوک کیا۔ ایسے لوگوں سے اب بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر خاص طور پر عیسائیوں کو تنبیہ فرمائی کہ اللہ نے قرآن کی شکل میں جو نور مبین خلق کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے اس کی قدر کرو اور گمراہی چھوڑ کر ہدایت پر آ جاؤ۔ عیسائیوں سے کہا کہ اپنے دین میں غلو یہ ہے جو چیز پاؤ بھر ہے اسے سیر بھر کر دیا جائے، نہ کرو۔ دین میں جو چیز مستحب ہے اسے فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے، اور جو شخص مجتہد ہے اسے امام معصوم بنا دیا جائے، اور جسے اللہ نے رسول اور نبی بنایا ہے اسے خدائی صفات میں شریک قرار دے دیا جائے، اور تعظیم سے بڑھ کر اس کی عبادت شروع کر دی جائے۔ یہ لوگ اس غلو کو دین کی خدمت اور بزرگوں سے عقیدت سمجھتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک یہ جرم ہے۔ عیسائیوں کی مثال اللہ نے دی کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو خدا کے رسول سے آگے بڑھا کر خدا کا بیٹا بنا دیا۔ مسلمانوں کو بھی غلو سے بچنا چاہیے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے آخری امت کی حیثیت سے مسلمانوں سے اپنی آخری اور کامل شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ قائم رہنے اور اس کو قائم کرنے کا عہد لیا ہے۔ یہی عہد پہلے اہل کتاب سے لیا گیا تھا، مگر وہ اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے۔ اب مسلمانوں سے عہد لیا جا رہا ہے کہ تم پچھلی امتوں کی طرح خدا کی شریعت کے معاملے میں خائن اور غدار نہ بن جانا، بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ اس عہد کو نبھانا، اس پر خود بھی قائم رہنا اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ اس راہ میں پوری عزیمت اور پامردی کے ساتھ تمام آزمائشوں اور خطروں کا مقابلہ کرنا۔ سب سے پہلے اللہ سے باندھے ہوئے عہد کی تاکید کی، پھر حرام مہینوں اور تمام دینی شاعر کے احترام کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ہر نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہرگز کسی کی مدد نہ کرو۔ کھانے کی جو چیزیں حرام ہیں انہیں گنایا اور بتایا کہ دوسروں کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے کیے ہوئے حرام اور حلال کی پرواہ کرو۔ حرام کردہ اشیاء کی تفصیل یہ ہے: 1 مردار جانور جو طبعی موت مر گیا ہو، 2 خون جو بہتا ہوا ہو اسے پینا کھانا جائز نہیں، 3 سور کا گوشت بلکہ اس کی ہر چیز حرام ہے، 4 وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا جس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت کی گئی ہو کہ وہ فلاں بزرگ یا فلاں دیوی دیوتا کی نظر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا گلہ یا کوئی اور کھانے کی چیز، دراصل اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی نے وہ چیز ہم کو عطا کی ہے، لہٰذا اعتراف نعمت یا صدقہ یا نظر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کا ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کے بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی بالاتری بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو بھی منعم سمجھتے ہیں۔
5 وہ जानवर भी हराम है जो मुख्तलिफ असबाब की बिना पर मर गया हो, जैसे गला घोंटकर या चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर या टक्कर खाकर मर गया हो या किसी दरिंदे ने उसे फाड़ा हो। अलबत्ता जिसे हमने जिंदा पाकर अल्लाह के नाम पर ज़िबह कर दिया हो वो जानवर हलाल है। 6 वो जानवर भी हराम है जो किसी आस्ताने पर ज़िबह किया गया हो। इससे मुराद वो सब मकामात हैं जिनको गैरुल्लाह की नज़र नियाज चढ़ाने के लिए लोगों ने मखसूस कर रखा हो, चाहे वहाँ कोई पत्थर या लकड़ी की मूरत हो या ना हो। 5 पासों या फालगिरी के ज़रिए जो तकसीम कर रखा हो वो भी हराम है। मुशरिकाना फालगिरी जिसमें किसी देवी देवता से किस्मत का फ़ैसला पूछा जाता है या गैब की खबर दरियाफ्त की जाती है या बाहमी निज़ाआत का तस्फिया कराया जाता है। मुशरिकीन मक्का ने इस गर्ज़ के लिए काबे के अंदर हुबल देवता को मखसूस किया था। उसके स्थान पर 7 तीर रखे हुए थे जिन पर मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हुए थे। किसी काम के करने या ना करने का सवाल हो, गुमशुदा का पता लगाना हो, खून का फ़ैसला मतलूब हो, हुबल के पासेदार के पास पहुँच नजराना देते, दुआ मांगते, फिर तीरों के जरिए फाल निकाला जाता। जो तीर भी निकलता उसे हुबल का फैसला समझा जाता। तवहुम परस्ताना फालगिरी जैसे रमल, नुजूम, शुगून, नक्शर भी हराम है। नीज़ जुए के किस्म के वो सारे खेल जिनमें इनामात की तकसीम हुकूक और खिदमात और अकली फैसलों पर रखने के बजाय महज इत्तेफाकी अम्र नंबरात पर रख दिया जाए, जैसे लॉटरी, मुअम्मा वगैरह। अलबत्ता कुरान अंदाज़े की सिर्फ सादा सूरत इस्लाम में जायज़ है जिसमें 2 बराबर के जायज़ कामों या हुकूक के दरमियान फैसला करना हो। इन तफसीलात के बाद फरमाया कि अब दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया गया और अल्लाह ने शरीयत की नेमत तुम पर तमाम कर दी, बस इसी की पैरवी करो। तरबियत किए हुए शिकारी जानवरों के ज़रिए शिकार, अहले किताब के खाने और उनकी औरतों से निकाह के बारे में अहकाम बताए। साथ ही ये क़ैद भी लगाई कि इस इजाज़त से फ़ायदा उठाने वालों को अपने ईमान व अखलाक की तरफ से होशियार रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किताबिया औरत ईमान और इसके किसी तकाज़े पर डाका डाल ले। नमाज के लिए वज़ू का हुक्म और मजबूरी की हालत में तयम्मुम की इजाज़त दी। बनी इसराइल से अहद का जिक्र किया। जब उन्होंने शरीयत की पाबंदी से इन्हिराफ किया तो अल्लाह ने उन पर लानत की। इसी तरह नसारा से अहद लिया था मगर उन्होंने भी एक हिस्सा भुला दिया, यानी इबादत के नाम से जो रसूमात हैं उनके नज़दीक वो तो दीन का हिस्सा हैं, मगर बकिया मामलात जो दुनिया से मुताल्लिक़ हैं उनमें खुदाई हिदायत के पाबंद नहीं रहे। इस वजह से अल्लाह ने उनके अंदर अना और इख्तिलाफ की आग भड़का दी। वो आखिरत तक इसकी सज़ा भुगतेंगे। गोया मुसलमानों को तंबीह की जा रही है कि वो अहद की पाबंदी करें। अगर वो यहूद व नसारा के रास्ते पर चले तो फिर उनका भी वही अंजाम होगा। इन आयात की रोशनी में हम तारीख़ को देख सकते हैं और अपने ज़वाल के असबाब को भी जान सकते हैं और इससे निकलने का रास्ता भी पा सकते हैं। फिर अल्लाह ने बनी इसराइल का वो वाक़या दोहराया कि उसने अपने फ़ज़ल से उन्हें नवाजा और फ़तह व नुसरत के वादे के साथ बशारत दी कि फ़लस्तीन की मुक़द्दस ज़मीन तुम्हारी मुंतज़िर है, जाओ और उस पर कब्ज़ा कर लो। मगर कौम में बछड़े की पूजा यानी दुनिया परस्ती ने इतनी बुज़दिली पैदा कर दी थी कि वो कहने लगे, ऐ मूसा, तू और तेरा रब जाकर पहले लड़कर फ़तह हासिल कर लें तो हम आ जाएंगे। इस पर अल्लाह ने 40 साल के लिए उन पर अर्ज़ मुक़द्दस को हराम कर दिया और उन्हें सहरा में भटकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ मालूम हुआ कि अल्लाह के मुक़द्दरात भी कौमों के तर्ज़ अमल से वाबस्ता हैं। मुसलमानों को ताकीद की कि हुद्दे इलाही पर कायम रहें और शरीयत की पाबंदी को अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया बनाएं। असल अल्फाज ये हैं, ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरते रहो और उसके क़ुर्ब का ज़रिया तलाश करो। ज़रिया यानी वसीला वही है जिसका ज़िक्र अल्लाह ने हब्लिल्लाह के नाम से किया है, यानी इस्लाम को मजबूती से मिलकर पकड़ लो और पूरी मुस्तैदी से अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करो और खुदा की राह में अपनी क़ुव्वतें लगा दो। खुदा के अजाब से यही चीज़ छुटकारा दिलाने वाली है, इसके सिवाय कोई चीज़ नफ़ा नहीं पहुँचाएगी। चोरी की सज़ा बताई कि चोर का हाथ काट दो और इस सज़ा को बेरियायत नाफिज करो। इसकी तफसील ये है कि चोरी 10 दिरहम से ज़्यादा की हो, मामूली चीज़ों के चुराने पर हाथ ना काटा जाएगा। 2 अमानत में ख़यानत किया तो उसके लिए यह सज़ा नहीं है। 3 खाने पीने की चीज़ों की चोरी, 4 परिंदों की चोरी, 5 बैतुल माल से चोरी, 6 तरकारियों और फल की चोरी में हाथ ना काटा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सज़ा ना दी जाएगी, बल्कि काजी अपनी सवाबदीद के मुताबिक मुजरिम को सज़ा दे सकता है। अलबत्ता जो लोग डाका ज़नी करते हैं और खुल्लम खुल्ला खुदा और रसूल से लड़ते हैं, इस्लामी हुकूमत के सालेह निज़ाम से जंग करते हैं, उनकी सज़ा ये है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए या सूली दे दी जाए या उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट दिए जाएं या जिला वतन तड़ी पार कर दिए जाएं। ये रूसवाकुन सज़ा दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए उससे बड़ी सज़ा है।
अलबत्ता पकड़े जाने से पहले वो तौबा कर लें तो वो सज़ा से बच सकते हैं। कसमों को पूरा करने की ताकीद की और अगर किसी जायज़ सबब से कसम तोड़नी पड़ जाए तो उसका कफ़ारा अदा करने का हुक्म दिया कि 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाओ या उन्हें कपड़े पहनाओ या एक ग़ुलाम आज़ाद करो, वरना 3 दिन के रोज़े रखो। फिर बताया कि शराब, जुआ, खुदा के सिवाय किसी चीज़ को इबादत के लिए गढ़ना, ये सब शैतानी काम हैं, ताकि शैतान इन चीज़ों के ज़रिए मुसलमानों के दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें खुदा की याद और नमाज से रोक दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की कि आप बिल्कुल निडर होकर अहले किताब से कह दें कि अगर तुम तौरात, इंजील और इस कुरान को कायम ना करो तो फिर अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। खुदा से सिर्फ उनको निस्बत हासिल होगी जो ईमान और अमल सालेह से निस्बत कायम करेंगे। नसारा के कुफ्र को बयान किया कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हुलूल यानी खुदा के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम में उतर आने और इसी तरह 3 खुदाओं के अक़ीदे गढ़ लिए। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम का असल मर्तबा ज़ाहिर किया। बनी इसराइल पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की लानत का हवाला दिया और बताया कि ये कैसे किताब और ईमान के दावेदार हैं कि मुसलमानों के मुकाबले में बुत परस्ती करने वाले मुशरिकीन मक्का को तरजीह देते हैं और उन्हें बेहतर बताते हैं। ये सब इनकी इस्लाम दुश्मनी है। क्योंकि आज पढ़ा जाने वाला आखिरी रुकू इससे आगे के रुकू की तमहीद है, इसलिए इसका मफ़हूम इंशाअल्लाह कल के रुकू के साथ बयान किया जाएगा। 5वीं तरालीह का बयान ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह इसकी बरकतों से हमारे मुल्क और शहर के हालात तब्दील फ़रमाए, आमीन। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।